तो we have to the mixture of ammonium chloride and calcium hydroxide is grinded into small pieces. This is grinded. Okay, then it is heated. This is the flame. This is the flame. This is heated by this. Then the ammonia, NH3 and CaCl2 all are formed. CaCl2 को अलग कर लेंगे. Ammonia will be mix up with the water or the moisture. This will pass through this tower. This tower is nothing but the drying tower. Okay, which is filled with quicklime, which is drying agent here. Okay, so this will what, this quicklime will absorb, this will absorb the moisture from this, and the ammonia gas will be released. Ammonia gas जो ये रास्ते से निकल जाएगी बाहर. Okay, so this is the reactants are grinded and taken in the round bottom flask in the slanting position, means at an angle. It is taken at an angle. It is needed. It is very important to take it at an angle. Okay, नहीं तो आपका मुंह हाथ जल सकता है. ठीक है. On heating the mixture, ammonia gas is evolved. Precautions: the flask is tilted in such a way that the water formed in the reaction does not trickle back into the heated flask. फिर से पानी वापस ना जाए, नहीं तो वो फूट सकता है आपका फ्लास्क, मतलब टेस्ट ट्यूब में भी ब्रेक. ओके. Drying of ammonia gas. In order to dry the ammonia gas, it is passed through the drying tower containing quicklime. Containing quicklime. ओके. कौन से ड्राइंग एजेंट्स और होते हैं जो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं बेटा? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देम. कौन बताएगा? H2SO4. Very good. Concentrated H2SO4 cannot be used. And another one कौन सा ड्राइंग एजेंट जो ज्यादा यूज होता है? कौन बताएगा मेरे को क्विकली? P2O5. वेरी गुड. फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड. बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड. अच्छा ये बताओ मेरे को जतिन कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहां पे यूज किया था आपने ड्राई करने के लिए? In which preparation you have used this as a drying agent? Concentrated H2SO4. Please tell me. Jatin, I am asking to you. HCl में. HCl में. Very good. We have used this in HCl. In the preparation of HCl gas में हम लोग concentrated sulfuric acid use किए थे as a drying agent. Is it okay? Yes sir. तो अब आप क्या करोगे? आप यहाँ पे क्विक लाइम यूज करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड, बट नॉट H2SO4. Why sir? Why sir H2SO4 is not used? हाँ, क्यों? Sir, because they react with ammonia. And what did they form? Compound. कौन से कंपाउंड? कैन यू राइट डाउन द रिएक्शन प्लीज? रिएक्शंस को लिखिए जरा. सर हाँ, आप हिंदी में पढ़ाओ. हाँ तो बताओ ना, आप समस्या बताओ मेरे को. रिएक्शंस लिखो. नहीं सर. रिएक्शंस लिखो. रिएक्शंस. राइट डाउन द रिएक्शंस. राइट डाउन द रिएक्शंस. Unsuitability of unsuitability. We'll write unsuitability of drying agent, of drying agent, of other drying agent, of other drying agent. कौन है ये? कौन आ गया? और कृष्णा राजपूत दो जगह से आ गया. अनसुटेबिलिटी ये आता है तो आता ही नहीं है, नहीं आता है तो आता है तो दो बार आ जाता है. अनसुटेबिलिटी ऑफ अदर ड्राइंग एजेंट्स. other drying agents. Unsuitability of the other drying agents means what? Other drying agents cannot be used. दूसरे drying agents हम लोग यूज नहीं कर सकते. क्यों भाई? क्योंकि ये रिएक्ट कर लेते हैं. हम नहीं चाहते हैं कि अमोनिया के साथ रिएक्शन हो. We don't want that ammonia will react with calcium oxide. No. अगर ये रिएक्ट करता है अमोनिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो कुछ और हो जाएगा. हम लोग को प्रिपरेशन करना है अमोनिया का. We want ammonia. We don't want that the ammonia reacts with that drying agent. ड्राइंग एजेंट को बस इतना काम करना चाहिए कि वो मॉइस्चर हटा दे, that remove the moisture from the ammonia gas which is present in the ammonia. बस इतना काम कर ले वो. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? CaO यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम यूज करते हैं. कोई और क्यों नहीं यूज करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अदर ड्राइंग एजेंट्स लाइक other
drying agents, other drying agents like concentrated sulfuric acid, like concentrated sulfuric acid, like concentrated H2SO4, okay, comma P2O5 phosphorus pentaoxide, P2O5, this is nothing but the phosphorus pentaoxide, this is also not used, this is also not used, anhydrous calcium chloride. अच्छा मेरे को बता सकते हो क्या एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी, कैन एनीवन टेल मी? Sir, without water. Which does not contain water. Anhydrous means the water is removed. Anhydrous calcium chloride means the water is removed. Very good. CaCl2. This is also a drying agent. Anhydrous calcium chloride is also a drying agent. But these all three cannot be used. Cannot be. Other drying agents, this cannot be used. Why? Ammonia, because ammonia reacts with them. Ammonia reacts with them. Because ammonia reacts with them. क्यों ammonia react करता है बेटा उनके साथ? कैसे रिएक्ट करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. फ्रॉम हियर क्वेश्चंस विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम. ओके, यहीं से क्वेश्चन आता है और अच्छे स्टूडेंट में और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट में यहीं पे अंतर पता चल जाता है. अच्छा स्टूडेंट तो क्या करेगा, पढ़ा होगा बता देगा, लेकिन बहुत अच्छा स्टूडेंट उसको अच्छे से रिएक्शन लिख के बताएगा. चलिए क्या है फर्स्ट में क्या होगा? एमोनिया विल रिएक्ट, हम लोग H2SO4 यूज कर लिए अगर गलती से, तो what will form? Ammonia will react with H2SO4 and this will form what? Ammonium sulfate. What? Ammonium sulfate. Can you please tell me what is the formula of ammonium sulfate? मेरे को कौन बताएगा ये? कृष्णा राजपूत बता सकते हैं क्या? What is the formula of बेटा ammonium sulfate? मैंने नाम लिख दिया, फॉर्मूला बता दो. चलो विवेक कुमार, what will the formula? विवेक, हाँ. NH4 whole twice NH4 whole twice SO4. very good. This will be formed ammonium sulfate. This will be formed. ये बन जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा भाई, एमोनिया हमारा गायब हो जाएगा. हमको तो वही चाहिए था. अब चलो अगर एमोनिया का रिएक्शन P2O5 के साथ करा देते हैं तो NH3 gets reacted with P2O5 and water is also there, H2O. तो क्या बनता है ये? क्या बनता है? Ammonium phosphate. Please mind, ammonium phosphate is formed. नैतिक, ammonium phosphate का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या आप हमको? NH4 का होल थ्राइस प्लस PO4. प्लस PO4 नहीं बेटा, PO4 बस. PO4 साथ में रहेगा, प्लस कैसे आ जाएगा? NH4 whole thrice PO4. Phosphate having the charge of 3-, ये आप लोग को पता होता है. फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड पढ़ा था ना, H3PO4. यस और नो? H3 फॉस्फोरिक एसिड हमने बताया था H3PO4 एसिड बेस एंड सॉल्ट में. अच्छा एक चैप्टर और हो चुका है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो ये भी बनेगा यहाँ पे. थर्ड रिएक्शन इज विथ कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 प्लस एमोनिया. क्या बनेगा बताएगा कोई? हाँ सलोनी, कैन यू Sir, टेल मी? CaCl2 और NH3. मतलब Sir, CaCl2 पॉइंट 0.4 NH3. पॉइंट NH3. अच्छा, इसको पॉइंट नहीं कहते बेटा, मैथमेटिक्स नहीं है. दिस इज केमिस्ट्री. दिस इज नोन एज डॉट. Water of crystallization. डॉट 4NH3. अब 4NH3 मतलब क्या है भाई, ये आपको याद था क्या? नहीं सर, मैंने एक्चुअली बैलेंस की थी इक्वेशन. बैलेंस कर लिया था पहले से ही.
यस सर, मेरा एक्चुअली टेस्ट था ना इसमें स्कूल में, यूनिट टेस्ट टाइप, तो मैंने उसको पढ़ा था। अच्छा, वेरी गुड। सो ये पता समझ में आया ये ऐसे क्या हो गया, ये ऐसे कंपाउंड कैसे बन सकता है? ये तो इस तरीके से तो हम किसी को भी लिखते। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? नो सर। ये चीज कैसे बना, ये चीज समझ में आ रहा है? कौन किसको समझ में आ रहा है? कैन यू एक्सप्लेन? संस्कार, आपको समझ में आ रहा है क्या ये कंपाउंड? नो सर। कि कोई है जो बैच में मेरे क्लास में जो बता सकता है ये कंपाउंड क्या कहना चाहता है? भाई देखो, बन गया वो बात अलग है, बट यू मस्ट नो दैट हाउ दिस इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज दिस, है क्या ये? कोई है? रुद्र? No, sir. नो सर। Sir, this is anhydrous calcium chloride. नो, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज दिस। अगर ये एनहाइड्रस नहीं बोलता है तो यहाँ पे H2O लिखते हैं हम लोग डेफिनेटली, बिकॉज H2 इज ऑल्सो फॉर्म्ड। और H2SO4 में तो एक्वस है ही, H2 इज प्रेजेंट इन दिस, H2O इज प्रेजेंट, यू हैव टू नॉट राइट द H2O, ओके। हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, एक्वस लिख दो काम खत्म। लेकिन हमको स्पेसिफिकली बोला एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज अ ड्राइंग एजेंट। इफ द वाटर इज टेकन देन दिस कंपाउंड वुड नॉट फॉर्म, ये नहीं बना रहता, ये नहीं बना रहता अगर H2O होता तो नहीं। बट यहाँ पे एनहाइड्रस तो पहले से पता है हमको। सर आप फिर से बता दो। अगर हमको एनहाइड्रस जैसे बोला इनने कि ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है सर, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट एनहाइड्रस, एनहाइड्रस दिस। जैसे P2O5 के साथ अगर H2O रिएक्ट किया है, मतलब क्या है कि H2O इज फॉर्म्ड इन दैट, H2O बना था ना, यस और नो? देखो जरा, मॉइस्चर है ना उसके साथ। अरे भाई अगर मॉइस्चर है तभी उसी को तो रिमूव करना है, यस और नो? Yes. The ammonia gas which is formed, that is containing moisture. Moisture means what? H2O. Moisture means what? H2O. तो ये रिएक्ट करके ये H2O होगा ना एमोनिया के साथ, तो एमोनिया के साथ H2O यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एमोनिया के साथ H2O अगर आप कहोगे सर क्यों नहीं दिखाया गया है, तो आप बेटा पढ़े हो कि H2SO4 is an acid and it is not in the actual form, concentrated भी होगा तो उसमें कुछ तो वाटर होगा, यस और नो? Yes. यस सर। The acid will be not in pure form. H2SO4 कभी भी आपको प्योर में मिलेगा ही नहीं, आप कभी ना कंसंट्रेटेड डाइल्यूट में मिल सकता है। तो कंसंट्रेटेड में क्या होगा कि एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वाटर, बट इन डाइल्यूट the amount of water will be more in comparison to acid. This is the difference between dilute and concentrated. If you have taken the concentrated, no doubt there will be water in that. ये चीज सबको क्लियर है ना? वाटर तो प्रेजेंट होगा भाई, I have not written water, but it is present inside water, inside H2SO4, okay. But यहाँ पे लिखा क्यों नहीं? यहाँ पे एनहाइड्रस लिया है, एनहाइड्रस लिया है मतलब वाटर होगा ही नहीं, वाटर हट जाएगा उसमें से, ओके। दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड जो होता है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग मिक्सचर। दिस एक्चुअली इज नॉट अ कंपाउंड, दिस इज अ मिक्सचर, दिस इज अ मिक्सचर, और यू कैन ऑल्सो नेम इट एज एडिशन कंपाउंड। डिफरेंट तरीके से रिएक्शन होता है, दिस इज बेसिकली एडिशन कंपाउंड। इस ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है ना कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं दे डायरेक्टली एड अप, वो डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं, दे फॉर्म लाइक दिस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यू विल कम टू नो। कई सारी चीजें होती है केमिस्ट्री में, और भी आगे आप लोग देखोगे धीरे धीरे जब 11th 12th में पढ़ोगे, विल कम टू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दिस इज वन ऑफ देम, एडिशन कंपाउंड बनेगा, ओके। ये अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि इस तरीके से भी रिएक्शंस होती हैं, इस तरीके से भी कंपाउंड्स बनते हैं, ओके। इज इट फाइन टू एवरीवन? रुद्र, तो जतिन कुछ समझ में ना आया हो बेटा पूछ लो, इफ यू हैव एनी डाउट। आ गया सर। चलिए ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर से क्वेश्चंस बेटा, आप लोग सोचते हो कि आप लोग के दिमाग में क्या आता है, हम पता है, हम आपको ये लगता है कि यार एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है अभी हमको, उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ना है हमको, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। राइट एन इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट एन इक्वेशन और राइट एन रिएक्शन when ammonia reacts with phosphorus pentaoxide,
moisture ammonia react with phosphorus pentoxide, what will be the reaction and what will be the role of phosphorus pentoxide? ऐसे क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस कभी बेटा अभी क्या है कि पेपर आसान बनता है कठिन बनता है अपने हाथ में नहीं है, वो क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है। बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सर क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, what will be the question they will be asking? The question will be like this कि H2SO4 के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता है एमोनिया, क्यों नहीं ड्राइंग एजेंट हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज कर लेते हैं या P2O5 क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? तो यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस। अगर आपने केमिस्ट्री में इक्वेशंस नहीं लिखी फॉर योर एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली विल नॉट गेट एनी मार्क्स। ओके, आप सोचते हो कभी कभी सेंटेंस लिख के काम चल जाएगा कि हाँ P2O5 दिस फलाना ढेकाना लिख दिया, इक्वेशन ना लिखी तो बेटा 0 बट्टा सन्नाटा हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे जैसा टीचर और काट भी लेगा नंबर कि ये होशियार बन रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं भाई साहब। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू द इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, चलिए अब हमको मिल गया एमोनिया गैस बन गया। I will enable the chat option. Okay, Jatin. I will enable the chat option. If you are all chatting with yourself, अपने आप में आप लोग चैट कर रहे हैं, so this is not for that. Okay, this is not for you, Jatin. Please mind. अगली बार ये गलती हुई तो हमने CBSE 10th में कायदे से समझा दिया था पूरा। ठीक है, so please do not change my mind. I am very straight cut. I am telling you. Okay, please do not chat. अगर आपको क्वेश्चंस है कोई तो मेरे से पूछो। ओके, ठीक। नाउ वी हैव टू कलेक्ट द अमोनिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कलेक्ट द अमोनिया। द कलेक्शन ऑफ अमोनिया, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कलेक्शन कैसे करेंगे हम लोग? NH3 हमारे पास ड्राई मिल चुका है, अब इसको कलेक्ट कैसे करेंगे हम लोग? हाउ टू कलेक्ट दिस? दिस इज कलेक्टेड। अच्छा ये बताओ एमोनिया का मास कितना होगा? मैंने बताया था आप लोगों को। व्हाट विल बी द मास ऑफ एमोनिया? व्हाट विल बी द मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? सर 17। वेरी गुड, 17 ग्राम। 17 ग्राम। और O2 का कितना होता है बेटा? ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन 32। कौन हल्का है? हैं? अमोनिया। सर अमोनिया। अमोनिया इज लाइटर, यस और नो? यस सर। दिस इज ऑक्सीजन इज सेड टू बी एयर। एयर में हम लोग केवल ऑक्सीजन की बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है। नो डाउट कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, लेकिन मेनली ऑक्सीजन की बात किया जाता है। ओके, तो ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम और एमोनिया का मास 17 ग्राम। कौन हल्का है भाई? एमोनिया। तो ये बताओ, ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से होगा कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से होगा? मैंने पढ़ा दिया है, प्लीज। डाउनवर्ड है सर, डाउनवर्ड। सोच समझ के बोलना। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर और अपवर्ड, हाँ जी, अपवर्ड से होगा सर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट सर ऑफ डाउनवर्ड से होगा। एयर। कॉमन सी चीज है, कॉमन सी चीज है। हाँ रुद्र, आप बता सकते हैं क्या? सर एक बार आप रिपीट कर देना, ओ बाबा, क्या रिपीट कर दे? मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बताओ कि ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से होगा कलेक्ट? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से होगा, यस और नो? नैतिक यस सर। पक्का है यार? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या कॉन्सेप्ट गड़बड़ करके रखे हो जतीन अपना? क्या कॉन्सेप्ट क्यों गड़बड़ करके रखे हो बेटा? ये बताओ, एयर से हल्का है, एयर से हल्का है, एयर से हल्का है, ठीक है, तो ये इन्वर्टेड ट्यूब में मिलता है हमको, तो नीचे नीचे रहेगा हल्का है, तो यस और नो? यस सर। और बाकी एयर जो है वो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से आपको मिल जाएगा बिकॉज इट इज लाइटर देन
लाइटर देन एयर। और सेकंड सेकंड रीजन क्या है, आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है ये, दिस एमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, बहुत ही Yes, sir. ज्यादा सॉल्युबल होता है, बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है। अच्छा ये बताओ कि किसी को पता है क्या क्यों ज्यादा सॉल्युबल होता है एमोनिया वाटर के अंदर? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाई दिस एमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर? विवेक कुमार बता सकते हैं बेटा? विवेक, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर? सलोनी, सलोनी यस सर। बता सकते हैं आप? नो सर। नो सर। कोई है जो बता सकता है? मेरे को कोशिश करो, जस्ट ट्राई। हाँ जी, मिस्टर संस्कार, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ एमोनिया? No, sir. नो सर। नित्या? नो सर। ओ माय गॉड, कंप्लीट क्लास इज अनअवेयर अबाउट दिस। ओके, कोई बात नहीं। जतिन, आप ट्राई करोगे? No, sir. ट्राई भी नहीं करोगे? ओ माय गॉड। हाँ Sir, कशिश बताओ। sir, because it has the ability to form hydrogen ion कौन सा हाइड्रोजन? at ions, नो 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 so नो नो it नो can form ammonium easily. नो, it is ammonia when it is dissolved in water. What is happened that its solubility is more? ऐसा क्या हुआ है कि ये ज्यादा सॉल्युबल हो रहा है इसके अंदर? इसका मन लग गया है वाटर के साथ। क्यों मन लग गया है? क्यों मन लग गया है भाई? ये कंपाउंड एमोनिया जो है ये इतना ज्यादा वाटर के साथ घुल क्यों गया भाई? डिजोल्व मीन्स यही तो, सॉल्युबिलिटी का मतलब यही तो, घुल गया उसके अंदर और ज्यादा घुलना जाता, हाईली सॉल्युबल। क्या ऐसा दोनों में हो रहा है? क्या बन रहा होगा भाई? आप लोग इतना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हो, एटलीस्ट यू कैन गेस कि क्या हो रहा होगा दोनों Sir, में। it does not have ability to form hydrogen ions, but yes, it has ability to form hydrogen bond. वेरी तो सर गुड, आपने बताया वेरी था गुड, वेरी उसकी गुड, वजह से जो वेरी गुड। वाटर मॉलिक्यूल होता है ना वो टूट जाता है। कहाँ से याद आ गया अचानक से? सर अभी आपने बताया ना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हो तो याद आ गया कि तो केमिकल ये बॉन्डिंग में आंसर आपने बताया था। आंसर आपको पहले बताना चाहिए ना। क्या होगा? एमोनिया में NH3 है, NH3 है। वाटर में क्या H2O है बेटा? आप लोग को मैंने बताया था ये बात कि हाइड्रोजन बॉन्ड करके एक चिड़िया का नाम होता है, एक बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताया था कि नहीं बताया था, ये बताओ। यस सर। Yes. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन हुआ था नित्या, यस सर। तो कब याद रहेगा? ये चीज गड़बड़ है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन किसके किसके साथ बनाता है? मेरे को कौन बताएगा? जतिन, जतिन हाइड्रोजन किसके किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? जस्ट टेल मी। सर ऑक्सीजन के साथ वेरी गुड। और और नाइट्रोजन के साथ। और और समझना कितने एग्जांपल चाहिए हैं? सर? और कितने एग्जांपल चाहिए? नहीं नहीं, एक और जो है इसमें ज्यादा के साथ बनाता ही नहीं है, 3 के साथ बनाता है, एक और है, एक और है बस। सर कार्बन। अरे नो क्लोरीन। नो। हाँ कशिश बताएं आप, पता है आपको? Sulfur, नो। एंड एक हिंट दूंगा मैं किसके किसके साथ कोई एटम सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहता है? मतलब सबसे ज्यादा परेशान पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन होता है बॉन्ड बनाने के लिए भाई? sodium, सोडियम तो होता है, लेकिन उससे भी कोई परेशान है ज्यादा। Potassium, अरे हैलोजन में कौन? fluorine, वेरी गुड, दैट इज फ्लोरीन। ये भाई साहब तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये कहां से चुक जाएंगे इसमें? ये कहां से चुक जाएंगे? ये तो कहेंगे यार हम तो तुरंत बनाएंगे बॉन्ड। तो ये 3 वो एलिमेंट्स हैं या एटम्स कह सकते हो जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कोई चौथा एलिमेंट नहीं है जिसके साथ ये बॉन्ड बनाता है।
ये ध्यान रखना है, अगले 11th क्लास में आप पढ़ोगे चैप्टर हाइड्रोजन, वहां पे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस स्मॉल थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं, आप लोग तरीका याद रख सकते हो, फॉन, फॉन, ऐसे आप शॉर्टकट याद रख सकते हो, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। या अपने से आप कुछ बनाना चाहते हो बना लो, ठीक है। नॉफ याद कर लो, जो भी है आपके ऊपर है, मेरे को फॉन लगता है, आप फॉन कर लो। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आप लोग ने पढ़ा है, वाटर का स्ट्रक्चर सबने पढ़ा है बेटा, ठीक है। क्या होता है, ओ, एच और एच, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्या नाइट्रोजन के साथ भाई सब बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये, आर यू गेटिंग? दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आई सभी लोगों को, जितने लोग क्लास में है, प्लीज टेल मी दैट Yes, यू sir. हैव गॉट द Yes, sir. तो सर ये NH4 प्लस बनाएगा। ओ नहीं बेटा, बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन लेके नहीं जाएगा, दिस विल फॉर्म अ बॉन्ड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस इज वेरी वीक बॉन्ड, बहुत मतलब कोवैलेंट और आयोनिक जैसा नहीं है, ये कोवैलेंट और आयोनिक जैसा नहीं है, आर यू गेटिंग? ये जो बॉन्ड होता है, एक नया नाम होता है वंडर वॉल्स फोर्सेस, हम लोग पढ़ेंगे बाद में, वंडर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, वो उस कैटेगरी का एक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। सो हियर दिस इज बॉन्ड फॉर्म्ड, जिसकी वजह से एमोनिया इस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है ज्यादा। इज इट ओके टू एवरीवन? विवेक कुमार, Yes, sir. विवेक Yes. कुमार, Yes, sir. सबको क्लियर होना चाहिए, वेरी मच क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं, हाँ। फिर से बता दीजिए। Yes, sir. जे नित्या को कभी कॉन्फिडेंस क्या करती हो नित्या? चलो ठीक है, क्या किया हमने, हम समझाना चाहते हैं, ये हम लिख के हटा देंगे, ठीक है, यू हैव टू नोट इट डाउन। क्या है, एमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्यों है इसका रीजन बता रहे थे हम, व्हाई दिस एमोनिया इज, आपके बुक में खोजते रह जाओगे आपको नहीं मिलेगा कि ये एमोनिया क्यों ज्यादा सॉल्युबल है इन वाटर के अंदर, ठीक है। क्योंकि दिस एमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हाइड्रोजन का बहुत अच्छा एक नेचर होता है कि वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनको कभी भी देखता है तो उनके साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए परेशान हो जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही बना रहा है, नो डाउट, दिस हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग द बॉन्ड विथ ऑक्सीजन ऑल्सो, इसके साथ तो है बॉन्डेड, लेकिन इसके साथ भी बॉन्डेड हो जाता है, दिस इज ऑल्सो बॉन्डेड, ओके। दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल, यस और नो? Yes, sir. So this is also known as intramolecular, intermolecular, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यस और नो? तो हाँ, sir. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको पूरा कहेंगे अच्छे से, अगर कहना है तो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वाटर के अंदर भी है, एच और ओ में, यस और नो? हाँ, sir. ये एमोनिया जब जाएगा वाटर के पास तो नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन, आप कहोगे कि सर ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं किया, आपकी मर्जी है बेटा, कोई सा भी ले लो आप, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी, ये वाला हाइड्रोजन लेना है ये ले लो, ये वाला लेना है ये ले लो, ठीक है। वो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। अदर्स? सर, हाँ बताइए। सर NH3 में भी तो है। हाँ वो इंटरमॉलिक्यूलर है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर है ना, मॉलिक्यूल के अंदर ही है वो बेसिकली हाइड्रोजन नहीं है, वो कोवैलेंट कर रहा है, दैट इज बेसिकली कोवैलेंट, ओके, बिकॉज दैट इज शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, वो उस तरीके का बॉन्ड नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग फिर से आपको 11th में पढ़ना है बेटा, वहां पे और डिटेल में है, तो वहां के लिए कुछ बचा के रखो, सब कुछ यहीं पे ना पढ़ लो, ठीक है। आदर्श बताइए मेरे को, आदर्श? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. So if you have noted these all, so I am going to remove this. And now we'll do the collection of ammonia. Collection of ammonia. So ammonia is, लिख लेंगे इसके अंदर, ammonia gas is collected, ammonia gas is collected
in inverted jar by the downward displacement of air because reason I have explained you. Okay, तो reason आप लोग लिख सकते हैं खुद से भी बेटा. तो because first point, lighter than ammonia is lighter than air because ammonia NH3, okay, is lighter than air. Okay, okay. और सेकेंड पॉइंट इसमें है रीजन में कि इट्स हाईली सॉल्युबल in water, and therefore cannot be collected. अगर आप चाहो कि पानी के ऊपर इसको कलेक्ट कर लें, हम ऊपर निकाल लें, नहीं, ऊपर जाएगी नहीं क्योंकि वो हाईली सॉल्युबल है. हाईली सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर कैनॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर. कृष्णा राजपूत, आर यू गेटिंग समथिंग और नॉट? बस शांति से बैठे हो. कृष्णा, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? तो कलेक्शन ऑफ एमोनिया सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. विवेक कुमार, Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है. ये हो गया खत्म आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन. अब अगला मेथड देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन का. इसमें फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स, एमोनिया का प्रिपरेशन फ्रॉम मेटल नाइट्राइड. आइडेंटिफिकेशन बता दिया था. हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन सर ऑफ अमोनिया. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमोनिया. यस सर. एमोनिया का भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे ना, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे हम लोग. ओके. ठीक है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, उसमें कर लेंगे आप लोग. चलो, तो फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स, सेकेंड मेथड इज फ्रॉम, पूरा लिख लें, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड. नाइट्राइड्स क्या होते हैं? मेटल का नाइट्राइड कोई एग्जांपल बता सकता है कोई? एनीवन? प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, टेल मी सलोनी. फ्रॉम मेटल नाइट्राइड क्या होता है? Sir, N-1. N-1. Oh my God. The basic thing is that कि N-3, sorry. N-3 होगा ना. बाकी लोग को नहीं पता है क्या भाई? सर पता है. अरे पता है तो बताओ. N के ऊपर क्या होता है? N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7. It tries to gain the electron. How many electron does it gains to gain the stability? नोबल गैस बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 3. तो 3 माइनस आता है, बात खत्म. याद करने की कोई जरूरत है क्या इसको यार? संस्कार, नो, योर वॉइस इज नॉट कमिंग. N3 माइनस, यस और नो? तो अगर किसी मेटल के साथ मैं इसका रिएक्शन कराता हूं, मान लो पोटेशियम के साथ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आदर्श बना सकते हो? आदर्श, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्राइड?
quickly. Others, you have 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jatin, you have 5 seconds. Jatin, 5, 4, Jatin, 3, यस सर। जल्दी बताओ, 2, 1. Nitya, you have 3 seconds. 3, 2, Nitya, 1. Saloni, you have 2 seconds. Sir, KNO3. अरे हे भगवान, क्या हो गया? वो कहाँ से ला दिया? सर हम K3N बोल रहे हैं। बना दिया यार क्या? वो कहाँ से ला दिया? वो कहाँ से ला दिया दीदी? सर घर पे बना दिया। सर पोटेश, हाँ सॉरी, हाँ सर। हे भगवान, कहाँ हो? कुछ और कर रही क्या क्लास के अलावा? नो सर, नो सर, नो सर। यार ये बच्ची आज आई, ये फॉर्मूला सही बता दी। आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो, आप लोग गलत बता रहे हो, ये गलत बात है। सर K3N। K3N आपको तो टाइम मिला था, आप लोग ने क्यों नहीं बताया? सर आपने मुझसे सर तब पूछा ही आप सर तब आप सर आप ऐसे टाइम बोल रहे थे सर। क्या तो लग सर- रहा था नित्या? गलत लग रहा था हमने। सर मुझे भी K3N गलत लग रहा था। तो जिंदगी में क्या, मतलब हम बोले हैं ना, ना सोचो ज्यादा। ज्यादा सोचोगे गलती करोगे 100%। आप अपने हिसाब से एज्यूम मत करो, प्लीज डू नॉट एज्यूम बाय योरसेल्फ कि दैट आंसर विल बी रॉन्ग और राइट। जो आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको देखते हुए उसी को बस जो आ रहा है बस बोल दो। कितनी बार बोला है मैंने कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसान क्वेश्चन है, कम दिमाग में काम हो जाएगा। तो ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, मेरे को बताओ ना। हाँ सर। यार क्या करते हो आप लोग? आदर्श, आपको क्यों नहीं आया बेटा? बता सकते हैं आप हमको समस्या? आदर्श, प्लीज टेल मी। आदर्श, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? देखो, सीखना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा, नहीं चाहते तो फिर शांति से बैठे रहोगे। तो कोई ज्यादा, हम भी क्या करेंगे, हम बहुत दिन से बोलते रहते हैं, कितनी बार बोलेंगे? अब क्या करेंगे, बोलना पड़ेगा ही, हम तो टीचर हैं। आदर्श, हाँ बोलो ना, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी बार करोगे आप लोग ये चीजें? 1 होती है, +1 क्रिस क्रॉस कर दो, K3N बनेगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। है क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट का बता सकते हो? कैल्शियम नाइट्रेट का बता सकते हो? नैतिक, 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 कैल्शियम नाइट्रेट बेटा। सर वॉइस आ रही? हाँ आ रही। कैल्शियम नाइट्रेट का बता सकते हैं नैतिक? आई एम आस्किंग टू यू, जल्दी बोलो। वेरी गुड। आदर्श अभी सही है। तो यार बोला करो ना, जब आता है तो बोला करो। हाँ नैतिक, क्यों नहीं बोल रहे भाई? सर मैं बता रहा हूँ। क्यों तुम बता रहे? हम तुमसे पूछेंगे तब तो बताओगे, अपने मन से बता दोगे। मैं बता रहा सर, ऐसे थोड़ी चलता है। नैतिक, आपकी सर हम भी आवाज, बता रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है नैतिक, आप लिख के भेज दें। सर सही हमें भी है? बताना। हाँ तो प्राइवेट चैट में भेज दो आप चाहते हो। हाँ नैतिक, वेरी गुड, सही है। कशिश का भी सही है, नैतिक का भी सही है, आदर्श का भी सही है, सबको आ गया है, इसका मतलब अच्छी बात है। तो ये सारी गलतियां ना करो, ना किया करो आप लोग यार। ये N2 यही हो जाएगा। अब ये किसको सही लग रहा होगा बताओ ना मेरे को।
ये देखने में ऐसे कंपाउंड कभी आपने देखा ही नहीं है, तो आप कहोगे कि यार ये तो गड़बड़ है कुछ, इसमें हो ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सर ना कुछ। ऐसे ही K3N में लग रहा था, इसलिए थोड़ा गलत हो गया था, तो हमने उसमें O लगा दिया। तो वो अब जबरदस्ती अपने मन से वो लगा दोगे हैं? सर वो मतलब अजीब सा लग रहा था। अरे अजीब सा तो हो लगता ही है, ऐसे बहुत लोग अजीब से लगते हैं, इंसान होते हैं ना। यस सर, हैं? तो उससे तो थोड़ी हमें होता है। लगा गलत होगा। नहीं, लगने से नहीं होता बेटा, होने से होता है। एक्चुअली क्या है, वो चीज मैटर करती है, रूल आर रूल्स, वो फॉलो करने हैं आपको, बस वो फॉलो करोगे, गलती हो ही नहीं सकती। चलिए, तो प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स में एमोनिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ, किसका किसका रिएक्शन करेंगे हम लोग? वार्म वाटर एंड द मेटल नाइट्राइड्स। मान लो आपको रिएक्शन करता है मेटल नाइट्राइड, सपोज दैट मैग्नीशियम नाइट्राइड, सो प्लीज राइट अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg, क्या हो जाएगा, वही कैल्शियम का वाला जो फॉर्मूला का वही वाला इसका भी हो जाएगा, Mg3N2 रिएक्ट्स विथ वाटर, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे H2O के साथ। ये वार्म है, थोड़ा थोड़ा गर्म है, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्या बन जाएगा आदर्श या कोई और? हाँ रुद्र, आप बता सकते हैं बेटा क्या बनेगा, कोशिश करिए। एमोनिया बनना तय है, क्योंकि प्रिपरेशन तो एमोनिया का ही कर रहे हैं, एमोनिया बनना फिक्स है। आप बताइए दूसरा क्या बनेगा? सर NH3 और MgO। MG MgO। ना 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 ना, और जरा थोड़ा सा सर मैं दिमाग, बताऊं? थोड़ा सा दिमाग सर हम लगाओ। बता सर मैं बताऊं? नहीं, विवेक कुमार आपके पास ऑप्शन खुला है, आप बता सकते हैं। और आदर्श आपके पास ऑप्शन खुला है, आप बता सकते हैं। बाकी लोग बताना चाहते हैं, प्लीज सेंड द चैट। आदर्श, गुड, आपने तो बैलेंस करके भेज दिया, का मतलब क्या देख के बता रहे का कहीं से? हाँ बताओ ना मेरे को रुद्र। बेटा Mg इधर पे हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। वेरी गुड नित्या, क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस, दिस विल बी फाउंड विथ एमोनिया। बाकी आपका काम बचता है बैलेंस करना, कर लो। बाकी आपका काम बचता है बैलेंस करना, कर लो। मेरे को कशिश बताएंगी अब अगला रिएक्शन एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ। बताइए फॉर्मूला क्या होगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड का? टेल मी व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड? ALN. ALN। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर क्या बनेगा, वार्म वाटर, क्या बनेगा? इधर पे हाइड्रोक्साइड बना था, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड ही बनेगा सर। कौन सा हाइड्रोक्साइड? प्लीज टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ALOH का होल थ्राइस. ALOH का होल थ्राइस प्लस अमोनिया, यू कैन बैलेंस द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अगर कैल्शियम नाइट्राइड के साथ किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, इस तरीके से आप रिएक्शंस कर सकते हैं, ओके। बट दिस मेथड इज वेरी कॉस्टली, ये जनरली यूज नहीं किया जाता है अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए, तो ये केवल ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछ सकता है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जतिन, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? चलो एक चीज आप ही बता दो। मेरे पास अब क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, मैग्नीशियम, चलो कैल्शियम, अब चलो आगे पूछेंगे, अभी तो रहने दो। तो प्रिपरेशन ऑफ एमोनियम नाइट मेटल नाइट्रेट अमोनिया, प्लीज राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ दिस प्रोसीजर। क्या लिखा होगा, कैसे करते हैं हम लोग इसको, प्रोसीजर। ये बहुत सिंपल है, ये वैसे पूछता नहीं है, ये आपको डायरेक्टली केवल इक्वेशंस पूछ सकता है कि राइट एन इक्वेशन या राइट एन रिएक्शन टू प्रिपेयर एमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स। वैसे ये प्रोसेस कभी यूज नहीं किया जाता, इट्स नॉट यूज जनरली टू प्रिपेयर एमोनिया, ओके, सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं कि क्या करते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम नाइट्राइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड को एक फ्लास्क में लेते हैं,
वी टेक इनटू अ फ्लास्क, फ्लास्क के अंदर रखते हैं, राउंड फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग वार्म वाटर डालते हैं, ऊपर से गर्म पानी हल्का सा, मतलब उबलता हुआ पानी नहीं डालेंगे, वार्म वाटर डालेंगे जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट, वार्म वाटर की बात करें तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर आप ले सकते हैं 30 टू 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 30 क्या मतलब 40 टू 55 कर लो, 40 40 से 55 या 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम लोग वार्म वाटर की कैटेगरी में डालते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल गर्म पानी आप डालोगे उसमें, तो ये रिएक्शन जो हो रही है आपको दिखेगी, एंड दैट इज द प्रोसीजर फॉर दैट, ओके। और यहाँ पे भी ड्राइंग एजेंट हम लोग को लेना पड़ेगा क्विक लाइम, वी हैव टू टेक द ड्राइंग एजेंट एज अ क्विक लाइम फॉर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, फॉर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर आप लोग लेना पड़ेगा। इज इट नीडेड टू राइट डाउन द प्रोसीजर? नो क्यों? सर। प्रोसीजर अगर जरूरी है तो बताओ, मैं लिख देता हूं, अदरवाइज मैंने बता दिया सारी प्रोसीजर किस तरीके से क्या करेंगे इसमें। है ना ये तो हाँ जी, सर, ये तो सर प्रोसीजर सेम है ना। प्रोसीजर तो जो आपने रिएक्शन लिखा है वही है। प्रोसीजर का मतलब क्या करना है आपको, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम का नाइट्राइड लेना है ग्राइंड करके, ठीक है। उसमें वो आपको राउंड फ्लास्क में लोगे एक, ऊपर से आप वार्म वाटर थीसल फनल के थ्रू डालोगे। अब ये डायग्राम वगैरह आप देख लेना, बुक में दिया होगा। तो थीसल फनल के थ्रू आप वार्म वाटर डालोगे, वार्म वाटर डालोगे तो उनका रिएक्शन होगा, अमोनिया गैस निकलेगी, मॉइस्चराइज रहेगी थोड़ी, उसके अंदर मॉइस्चर होगा, और उसके बाद उसको कैल्शियम ऑक्साइड से पास कर देंगे ड्राइंग एजेंट से, सो दैट इट विल फॉर्म इनटू ड्राई गैस आपको मिल जाएगी, ओके, ड्राई एमोनिया मिल जाएगा, ओके। यस यस, सर। ठीक है। अब इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, प्रोसीजर अगर लिखने की जरूरत है तो बता दे, मैं लिख दूंगा। इफ इट इज नीडेड आई विल राइट इट डाउन। सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट में क्या डिफरेंस होता बहुत डिफरेंस होता है। है? सर जैसे कि H2SO4 है, तो सर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ड्राइंग एजेंट है या डिहाइड्रेटिंग? सर हमने तो पढ़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। दोनों है, आपने बताया था ड्राइंग एजेंट है। दोनों है। सर ड्राइंग एजेंट वाटर वेपर हटाता है और डिहाइड्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल, हाँ ना, हाँ सही है। बस यही डिफरेंस है। लेकिन इसका डिफरेंस मैंने लिखवाया था बेटा आप लोगों को। नहीं लिखवाया सर। अरे अरे सर हम नोट से पढ़ते हैं आपके, हमने नोट्स देखे नहीं था उसमें। क्यों नित्या? सर उस दिन आपने सर हम लोग को समझाया था, आपने कहा था स्लाइड्स भेजी थे, तो हमने मना कर दिया था। तो बताया था कि नहीं बताया था? राउंड राउंड क्यों बात कर रही हो ये बताओ। एक्सप्लेन किया था मैंने कि नहीं किया था? हाँ सर बताया था। तो बताइए, ये मतलब ये डिफरेंस बताइए, याद हो तो। संस्कार आपको भी बताया था, जतिन आप भी थे क्लास में, हाँ बताइए ना। ड्राइंग हम और हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलिए। भूल गए? ओ बाबा, भूलते भी हो। यस सर। मॉइस्चर और वाटर वेपर में आप लोगों को वाटर मॉलिक्यूल में अंतर पता है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर एंड वाटर मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल इज लाइक क्रिस्टलाइजेशन, ओके। क्रिस्टलाइजेशन आप लोग ने पढ़ा होगा, वाटर क्रिस्टल्स होते हैं। एंड मॉइस्चर इज अनदर थिंग, वो वाटर वेपर होता है। तो जो चीज रिमूव करता है मॉइस्चर को किसी दूसरे सब्सटेंस के थ्रू, मतलब किसी और सब्सटेंस में से मॉइस्चर रिमूव कर दे, वो ड्राइंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, उसके साथ क्या करता है, वो केमिकली रिएक्ट करता है, केमिकली का। हाँ बताइए। सर उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बोला तो हम कंफ्यूज हो गए। अच्छा, केमिकली कॉम्बिनेशन होता है, केमिकली कंबाइंड होता है, वो जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा, ठीक है। उसके बाद उसमें से वाटर निकालता है H2O, ठीक है। हाँ सर। और ड्राइंग एजेंट गैसेस के लिए ज्यादा यूज होता है। ड्राइंग एजेंट्स आर मेनली यूज्ड टू ड्राई द गैसेस, ओके। और कोई और ड्राइंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है
वो यूज होता है आपका कोई सॉलिड जैसा है, जैसे चारकोल है, शुगर चारकोल है, वुड चारकोल है, तो उन लोगों को करने के लिए। ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, आप लोग देख सकते हैं, एसिड बेस सॉल्ट में मैंने बताया था, यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन स्टैंड इट। चलिए चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं कल फिर इसी समय पे इसी जगह पे।